and energetic. Already we have seen this. Chemical thermodynamics is a branch of physical chemistry which deals with heat energy and its interrelationship with other forms of energy. At the same time, this is the chapter where we have seen the limit. Thermodynamics consider only initial state and final state. It never consider path followed by the system. Second thing, thermodynamics consider only macroscopic properties. It never consider microscopic properties. And third limitation what we have seen is thermodynamics never consider a rate of chemical reaction. So these are the points what we have discussed. ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं. उसके बाद फंडामेंटल डेफिनेशन हमने डिस्कस किए थे और मैंने ये भी बताया था आपको कि सारे के सारे फंडामेंटल डेफिनेशंस आपको प्रिपेयर करना है, अंडरस्टैंड करने, लर्न. क्योंकि अगर वो डेफिनेशन अच्छी तरह प्रिपेयर्ड है, आप ध्यान रखिएगा कि आप में से कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा अगर आपका पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है सारे डेफिनेशन, ये चैप्टर समझने में आपको कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, गारंटी है उस बात की. So in that sense, we have seen fundamental definitions here in the chapter. So सबसे पहला देखा हमने what is system. Then we have seen there are three types of system: open system, closed system, and isolated system. फिर उसके बाद देखा हमने सिस्टम के बाद देखा था हमने सराउंडिंग एंड बाउंड्री. क्या है सराउंडिंग, क्या है बाउंड्री, दैट इज आल्सो व्हाट वी आर सेइंग. फिर जैसे हम लोग आगे चले उसके अंदर देखा what is extensive property, what is intensive property. Then we have gone ahead next with what is state of a system and what is the state function. So हमने ये देखा था कि state of a system is described by known variables. Say for example, thermodynamics always consider macroscopic properties like pressure, volume, temperature, internal energy, and enthalpy. These are the topics discussed by thermodynamics. So we know the values of these topics or these properties, then we know the state of system. That is also what we are seeing here in the chapter. Then, just moving ahead, we have also seen the definition of process. What is process? We have seen that. So the operation or path followed by the system is called as a process. Or we have seen number of processes in between. We have seen there is a isothermal process. We have seen isochoric process. We have also seen there is isobaric process, adiabatic process. Then also we have what is reversible process, what is irreversible process, what is cyclic process. So these are also what we have seen the processes. Then furthermore we have seen the units. That is nature of heat and work. We have seen. That is being this is the chapter which is related with the energy, and there are different forms of energy. So we have seen that heat and work, these are also important forms of energy. ये भी energy के forms होते हैं. So whatever the units of heat, whatever the units of energy are the units of heat and work. So that is also what we have seen. तो कल हमने देखा था liter, atmosphere, joule, ergs, and calories. So these are the units also what we have discussed yesterday. ये भी हमने उसके अंदर discuss किया था. Now थोड़ा सा अगर हम लोग आगे करते हैं तो कल हमने सबसे पहला डेरिवेशन चैप्टर का डिस्कस किया था. दैट इज प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, और सिंपली यू कैन से वर्क ऑब्टेन्ड इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ द गैस. ये भी हमने उसके अंदर डिस्कस किया था. तो यही डिस्कस करते करते हम लोग आगे चलेंगे और हमने फाइनली पहला फार्मूला डिराइव किया था. दैट इज W is equal to minus P delta V. So W stands for work, P stands for pressure, and delta V stands for change in volume, that is V2 minus V1. ये हमने डिस्कस किया था. और नेगेटिव साइन, that is according to IUPAC norms, नेगेटिव साइन फॉर्मूले के अंदर हमने लाया बिकॉज IUPAC के नॉर्म के हिसाब से दो चीजें, सिस्टम और सराउंडिंग. इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग टेकन एज नेगेटिव, or if it's work done by the surrounding on the system taken as positive. So that is also what we have seen. So that's why negative sign appears in the equation. ये हमने उसके अंदर डिस्कस किया था. मुझे लगता है कल हमने यहाँ तक टॉपिक डिस्कस किया था और अभी हम लोग वहां से आके हमें सेकंड डेरिवेशन की तरफ मूव करना है. लेकिन थोड़ा सा कल का जो हमने रिकैप लिया था उसके रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है, कुछ पॉइंट्स है, उसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग. कि कल जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था हमें W is equal to minus P delta T, उसके साइन कन्वेंशंस आते हैं. तो वी हैव टू डिस्कस साइन कन्वेंशंस. So कल हमारा फॉर्मूला था W is equal to minus P delta V. ये आता है. P की जगह हम लोग P एक्सटर्नल भी रख सकते हैं. We can put P external to. और इसके साइन कन्वेंशन डिस्कस करने हैं. साइन कन्वेंशन मतलब what is meant by negative sign, what is meant by positive sign. So that is what we are discussing, sign conventions here. तो सबसे पहला कि W अगर नेगेटिव है, if W is negative, तो work is done by system on the surrounding. If W is negative, work is done by on the surrounding. अगर ऐसा होता है कि W is positive, W पॉजिटिव आता है, तो W पॉजिटिव आया तो उसका मतलब होता है वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम. ये इस तरीके से अगर हमारे पैकेट से पैसा चला जाता है तो नेगेटिव है,
हमारे ब्रैकेट में प्रेशर चला आता है तो पॉजिटिव है, तो सिस्टम से अगर एनर्जी चला जाता है तो नेगेटिव है, दैट इज वर्क, और सिस्टम के ऊपर अगर वर्क होता है दैट इज पॉजिटिव। इन दैट सेंस these are the sign conventions for this वर्क कि हम लोग मान सकते हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नॉर्म्स। ये साइन कन्वेंशन के अंदर आते हैं, जो ऑलरेडी हमने कल बात की थी उसके बारे में। एट द सेम टाइम वी हैव टू ऑब्टेन द वर्क ऑब्टेन इन डिफरेंट प्रोसेसेस, वर्क ऑब्टेन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं वर्क ऑब्टेन इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर वर्क कितना हो सकता है, वर्क ऑब्टेन इन वैक्यूम मतलब जब वैक्यूम में एक्सपेंशन होगा, कल हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, मतलब सिलेंडर था और पिस्टन एक्सपांड होता है बिकॉज ऑफ गैस एक्सपेंशन होता है, तो पिस्टन ऊपर ढकेला जाता है। तो हम उसके अंदर जब बात कर रहे हैं तो हम लोग तो ये थे कि अगर बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है तो गैस का एक्सपेंशन वैक्यूम में हो रहा है। तो अगर वैक्यूम है तो बाहर का प्रेशर है, तो दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर। तो प्रेशर की बात करते हैं, वैक्यूम में प्रेशर विल बी जीरो। अगर वैक्यूम में प्रेशर जीरो है तो यहाँ पे जीरो पुट कर रहे हैं, तो जीरो इंटू एनी फैक्टर विल कम टू जीरो, देन वर्क आल्सो विल बी जीरो, वर्क भी क्या होगा उस केस में जीरो होगा। सो इन दैट सेंस वी कैन से हियर वर्क ऑब्टेन्ड इन अ वैक्यूम because there is no external pressure, so the value of pressure will become zero, so work also becomes zero, तो वर्क भी उस केस में जीरो हो जाता है। so that is what we get here. Second, work obtained in isochoric process, so let's move here, that is isochoric process। अभी कल हमने देखा है what is isochoric process, आप जानते हो अच्छी तरह डेफिनेशन। what is the definition for isochoric process? The process in which volume remains constant, so the process in which volume remains constant is called as isochoric process। और इस isochoric process के अंदर क्या होता है हम आज कल जानते हैं, volume remains constant मतलब delta V which is also known as V2 minus V1 must be equal to zero, must be equal to zero। so isochoric process के अंदर delta V मतलब change in volume V2 minus V1 must be equal to zero। अगर वॉल्यूम जीरो है, ये यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग, वॉल्यूम यहाँ पे पुट करते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी फैक्टर विल कम टू अगेन जीरो, तो उस केस में भी वर्क कितना होगा, तो इस केस में वर्क विल बी जीरो। तो देखिए दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स कि अगर हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी सिस्टम का, किसी भी प्रोसेस का, तो कौन से कंडीशन पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट। सो इस केस में दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग हियर कि इफ वर्क मतलब सिस्टम एक्सपांड्स इन अ वैक्यूम, there is no pressure at all, no external pressure at all, we are not talking about internal pressure, क्योंकि दो प्रेशर होते हैं, एक्सटर्नल मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंटरनल मतलब गैस का जो प्रेशर होगा वो। so in vacuum there is no external pressure, external pressure must be equal to zero, and that's why this work will be a zero। work obtained in a expansion मतलब due to expansion in vacuum must be equal to zero। here work obtained in isochoric process में delta v zero है, change in volume zero है, and that's why work is also zero। so in that sense ये दोनों वर्क उस केस में क्या होंगे हमारे जीरो होंगे। that is what we can say, these are the work obtained in different processes and these are the sign conventions जो कल के टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ था हमारा। तो W is equal to minus P delta V, W stands for work, P stands for pressure that is external, and delta V stands for change in volume। यहाँ पे आप P external EX लिखते हो, राइट सफिक्स में तब भी चलेगा, नॉर्मली बुक के अंदर लिखा जाता है। so that is what we are doing। yeah, so this is what we are seeing। now let's go to the next very important concept, बहुत ही बढ़िया concept है, that is called the concept of maximum work। मतलब अभी भी हमने वर्क फाइंड आउट किया और दूसरा डेरिवेशन भी वर्क का ही है, ठीक है, दूसरा डेरिवेशन पर वर्क का है, लेकिन दैट इज कॉल्ड वर्क मैक्सिमम वर्क। सो इट इज यू कैन से मैक्सिमम work। so we have to discuss or we have to find out the concept called as maximum work। अभी first we'll discuss maximum work concept and then we'll derive the derivation for this one। तो maximum work का concept क्या है हमें पहले डिस्कस करना पड़ेगा। शायद आप में से कुछ लोगों को क्लिक हुआ होगा, लिंक हुआ होगा कि कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर एक प्रोसेस डिस्कस किया था जिसके अंदर देखा था हमने रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस डिस्कस किया। और व्हेन वी हैव डिस्कस द इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, तो उसके कई सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, कई सारे पॉइंट डिस्कस किए थे हमने, जो भी पॉइंट्स आते सारे पॉइंट्स हमने उसके अंदर डिस्कस किए थे। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, irreversible process is a process in which minimum work is obtained and reversible process is the process in which maximum is obtained। ये हमने कल इसका डिस्कस किया था, राइट। सो उसके लिए एग्जांपल भी दिया था मैंने, कल एग्जांपल दिया था मैंने कि डैम के अंदर का जो वाटर है वो डैम के अंदर का वाटर टर्बाइंस के ऊपर गिर के टर्बाइंस को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी तैयार करता है।
once that water falls on the turbines, that flows away. बट अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने शुगर केन जूस की बात की थी कल मैंने, कि शुगर केन जूस वाला बंदा क्या करता है कि उस मशीन के अंदर एक तरफ से शुगर केन पुट करता है और वापस दूसरी तरफ से निकाल के वापस पुट करता है, क्योंकि he has to extract the maximum juice. तो रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन्ड और ये रिवर्सिबल प्रोसेस में मिनिमम वर्क इज ऑब्टेन्ड. So these are the key points which has to be remembered well. Irreversible process in which minimum work is obtained and reversible process is the process in which maximum work is obtained. अब ये तो रहा पॉइंट, लेकिन how maximum work is obtained in case of reversible process ये हमें डिस्कस करना है, हमें देखना है. So that's why we have to discuss the concept called as concept of maximum work. There are two things. Number one is a concept and number two is a derivation. So derivation बाद में देखेंगे, पहला concept देखते हैं, how maximum work can be obtained. Let's have the graphical representation of this one, जो आपके बुक के अंदर नहीं है, but graphical आपको अच्छी तरह वो explain करेगा. Graph. So this is x-axis and this is y-axis, no doubt. और हम लोग कल से बात करें. Thermodynamics always consider initial state and final state. So this is our initial state. This is point A, and this is our final state. Say this is point B. ये हमारे दो points हैं. There is a point A which is initial, and there is a point B which is a final state. ठीक है? System A से B तक चला जाएगा. तो system धीरे से A से B तक चला जाता है. Okay, A से B तक चला जाता है. System moves from A to B. तो सिस्टम A से B तक चला गया. एरो भी दिखाया मैंने. सिस्टम मूव फ्रॉम A to B. A is the initial, B is the final state. Now the thing is that this is the reversible process. याद रखिएगा, when we are talking about maximum work, so maximum work is obtained only in reversible process. Maximum work is not obtained in case of irreversible process. So reversible process compulsory. So system A से B तक चला जाता है. तो रिवर्सिबल प्रोसेस के जो कुछ खास पॉइंट देखे हमने. नंबर वन, रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, है ना. तो रिवर्सिबल प्रोसेस आल्सो प्रोसेक्शन ओनली वन डायरेक्शन. सपोज ये पेन है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये उसको अपोजिंग फोर्स होता है. तो दिस इज द ड्राइविंग फोर्स, कौन इस तरफ, पेन इस तरफ जा रहा है. लेकिन अगर अपोजिंग फोर्स थोड़ा सा बढ़ जाता है तो सिस्टम कैन बी रिवर्स, सिस्टम रिवर्स किया जा सकता है. सो इसका मतलब ये है कि ड्राइविंग फोर्स इज इनफिनिटेसिमली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स. ड्राइविंग फोर्स इज इनफिनिटेसिमली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, एंड दैट्स व्हाई सिस्टम प्रोसेस इन वन डायरेक्शन. जब तक अपोजिंग फोर्स नहीं बढ़ेगा, सिस्टम एक ही डायरेक्शन में चलेगा. हाँ, जिस मोमेंट पे हम लोग अपोजिंग फोर्स बढ़ा देंगे, सिस्टम कैन बी रिवर्स्ड, बट रिवर्सिबल प्रोसेस आल्सो प्रोसेस इन ओनली वन डायरेक्शन. तो ए से बी तक हम जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए से बी तक. दूसरी बात इसके अंदर है कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस ये स्लो प्रोसेस होता है, फास्ट नहीं होता है ना. तो रिवर्सिबल प्रोसेस एकदम स्लोली चलता है. So that's why reversible process is slow. ये दूसरा पॉइंट है. तीसरा, how many stages are there between initial and final? कल भी बात की थी हमने. इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट है, इसके बीच में कितने स्टेजेस है, कितने पॉइंट्स है. So simply there are infinite stages. There are infinite stages between A and B. Okay, ये उसके अंदर की इंपॉर्टेंट बात है. आप देखिएगा, अभी कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क डन क्या होता है. See, this is the graph. यहाँ से यहाँ तक जा रहा है. सो ये इसका मैं यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. ये हमारा फाइनल लाइन से ड्रॉ. सिस्टम जब ए से बी तक जाएगा, सिस्टम जब ए से बी तक जाएगा, तो दूसरा एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं. थोड़ा सा दूसरा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. जो मतलब हमने सिलेंडर की बात की, दिस इज सिलेंडर. ये हमारा सिलेंडर है जो हमने कल इसकी बात की थी. सो दिस इज सिलेंडर, तो जिसके अंदर कौन सा गैस भरा हुआ है हम जानते हैं. इट इज फिल्ड विद आइडियल गैस. ये इसके अंदर आइडियल गैस भरा हुआ है, ये उसका पिस्टन है. ठीक है, एंड ये इसका आइडियल गैस है जिसका वॉल्यूम यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दैट इज V1, इतना वॉल्यूम, V1 इतना वॉल्यूम. अभी वो बाहर का जो प्रेशर है बाहर का जो प्रेशर है वो P एक्सटर्नल है. P एक्सटर्नल बाहर का प्रेशर है, मतलब ये जो प्रेशर इसके ऊपर एक्ट हो रहा है वो P एक्सटर्नल इतना है. अब देखिए, अगर ये प्रेशर थोड़ा सा कम करते हैं तो नया प्रेशर होगा P एक्सटर्नल माइनस BP. BP मतलब छोटा सा, स्मॉल चेंज इन प्रेशर. This is small change in pressure, BP. BP is a small change in pressure. हमारा इनिशियल प्रेशर कितना था, P एक्सटर्नल था. उसमें से हमने कितना कम किया है, DP. मतलब बाहर का प्रेशर थोड़ा सा कम किया हमने. ओके, अभी देखिए चीज, मतलब ये पिस्टन जब यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब है अंदर का और बाहर का ये P प्रेशर है और बाहर का P एक्सटर्नल प्रेशर. दोनों प्रेशर कैसे है, बैलेंस्ड है. दैट्स व्हाई वो यही पे रहेगा. अगर हम बाहर का प्रेशर थोड़ा सा कम करते हैं, DP से कम करते हैं, DP क्वांटिटी से कम करते हैं, मतलब स्मॉल क्वांटिटी, B stands for very small quantity. तो ये थोड़ा सा कम करते हैं, तो ये जो गैस है वो एक्सपांड होगा.
क्योंकि this will be a larger pressure, this will be a smaller pressure, so it will expand. तो expand होके piston थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, से यहाँ पे चला जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है। इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं कि सिस्टम इस पॉइंट से यहाँ तक मूव हुआ, तो इस ग्राफ के ऊपर देखिए सिस्टम ए से इधर तक मूव हुआ, ये पॉइंट हम लोग को मिल गया। से दिस इज द पी पॉइंट, एक्स पॉइंट, वाई पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे आ गया। अभी और सिस्टम क्या हो रहा है, अभी और हमने प्रेशर डीपी से कम कर दिया, तो अभी डीपी से कम कर दिया तो दिस बिकम्स 2 डीपी नाउ। पहली बार डीपी से कम किया, दूसरी बार भी डीपी से कम किया, मतलब 2 डीपी हो गया। तो नया प्रेशर क्या बनेगा, अभी यहाँ का प्रेशर बनेगा पी एक्सटर्नल माइनस 2 डीपी, 2 बार कम किया। अभी और यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा और एक्सपांड होगा, तो सिस्टम यहाँ पे चला जाएगा, पिस्टन यहाँ पे ढकेला जाएगा, लाइक दिस, पिस्टन ऊपर जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस ग्राफ के ऊपर देख सकते हैं हम लोग, पॉइंट पी से हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे, लाइक दिस। अभी देखिए कि यहाँ पे और ऊपर चला जाएगा, अगर हम और प्रेशर कम करते हैं 3 डीपी 4 डीपी, ऐसा कितना कर सकते हैं, एन डीपी कर सकते हैं। मतलब बाहर का जो प्रेशर है 1 डीपी 2 डीपी 3 डीपी, ऐसा एन डीपी तक कम कर सकते हैं। जितना कम करेंगे गैस एक्सपांड होकर चल जाएगा। से सपोज यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, दिस इज ये फाइनल स्टेज है। तो ये जो प्रेशर है V1 है, सॉरी ये जो वॉल्यूम है V1 है, और ये जो फाइनल वॉल्यूम है हमारा वो V2 है। फाइनल वॉल्यूम इज V2, फाइनल वॉल्यूम V2 है। तो दिस इज द इनिशियल स्टेट वॉल्यूम V1, दिस इज द फाइनल स्टेट वॉल्यूम V2। एंड V1 V2 के बीच में कितने स्टेजेस है, देयर आर इनफिनाइट स्टेजेस। भले हमने यहाँ पे अभी 3 ही निकाले थे, लेकिन ये जो चेंज है बहुत ही स्मॉल चेंज है, हर टाइम थोड़ा सा चेंज है डीपी, तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ऐसा कर करके देयर आर n नंबर ऑफ स्टेजेस, दैट इज इनफिनाइट स्टेजेस इन बिटवीन। तो दोनों के बीच में इनफिनाइट स्टेजेस है। तो जिस तरीके से यहाँ पे वो एक्सपांड होता जा रहा है, उसी तरीके से ग्राफ के ऊपर देख सकते हैं ए से पी तक आ रहा है पहला एक्सपेंशन, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर 4 6 7, ऐसा कर करके फाइनली यहाँ पे आएंगे। लेकिन ये कितने स्टेजेस है, इनफिनाइट। भले मैंने आपके 5 6 डॉट निकाले होंगे, लेकिन देयर आर इनफिनाइट स्टेजेस। तो पहला सिस्टम ए से मूव किया, यहाँ तक आया, फिर सिस्टम यहाँ से मूव किया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से मूव किया, यहाँ तक आया, यहाँ से मूव करके यहाँ तक, लाइक दिस। सो देयर आर इनफिनाइट स्टेजेस, देयर आर इनफिनाइट स्टेजेस। और जिस तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हमने कल भी देखा था कि इसके अंदर जो गैस भरा हुआ है वो एक्सपांड हो रहा है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और व्हेनेवर देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, अ स्मॉल वर्क इज ऑब्टेन्ड, दैट इज dw। वो कैसा निकलना है, कल हमने फार्मूला देखा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फाइनली हमने फार्मूला डिराइव किया, that is work is equal to P into delta V, ये फॉर्मूला हमने डिफाइन किया। तो दिस इज एप्लीकेबल हो गया, वो है। तो ये छोटा वर्क है dw, क्योंकि प्रेशर छोटा सा कम किया डीपी से, तो थोड़ा एक्सपांशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी बहुत थोड़ा है, और डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ा है तो वर्क भी थोड़ा ही मिलेगा। and that's why it is shown by dw छोटा सा वर्क तो मिलेगा। अगर प्रेशर में चेंज छोटा सा है तो वर्क भी छोटा सा होगा। तो इन दैट सेंस यहाँ पे dw मिलेगा, यहाँ पर भी dw मिलेगा, यहाँ पर dw मिलेगा, यहाँ पर dw मिलेगा। तो हर चेंज में छोटा सा dw वर्क मिलेगा। और ऐसे चेंजेस है कितने, जैसे हमने बताया कि यहाँ से इधर तक आया तो dw वर्क, यही ग्राफ पे दिखा रहा हूँ, ये तो बता रहा हूँ। यहाँ से सिस्टम इधर से इधर आया, वापस dw वर्क, सिस्टम यहाँ से इधर आया, dw वर्क, सिस्टम यहाँ से इधर आया, dw 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 dw। एवरी स्टेज में when system moves from 1 to second, second to third, third to, I say how many stages? There are infinite stages, and in each and every stage, small dw work is obtained. Small dw work is obtained. अगर हम लोग ऐसा मानते हैं, this is our initial state and this is our final state. So हर स्टेज में छोटा छोटा वर्क हम लोग को मिल गया। तो इनिशियल टू फाइनल जब चेंज हुआ, तो how much work is obtained? How much work is obtained? हर स्टेज में थोड़ा थोड़ा। तो ये अगर हम लोग अभी ये जो वर्क है इसे ऐड करें कि इंटीग्रेट करें, व्हाट डू यू फील दैट दिस वर्क हैज टू बी एडेड और वर्क हैज टू बी इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेट। वेरी गुड। एडिशन तब करते हैं हम लोग जबकि ये फाइनाइट क्वांटिटी होगी, और इंटीग्रेशन तब करेंगे जबकि वहां पे इनफिनाइट होगी। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि देयर आर इनफिनाइट स्टेजेस, और हर स्टेज में छोटा सा वर्क मिलेगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू गो फॉर द इंटीग्रेशन। सो हर छोटा छोटा वर्क इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स इनिशियल टू फाइनल, we'll get the maximum work output, and this is called the concept of maximum work. So hopefully everyone is clear with this one, because we are here with number one, we are here with reversible process. Number two, reversible process in which driving force is infinitesimally greater than opposing force. So number three, system proceeds in one direction slowly.
slowly. Number 4, there are infinite stages between initial and final. और when there is a expansion, तो चाहे यही सिलेंडर का एक्सपेंशन हमने ग्राफ में दिखाया, ये धीरे धीरे ऊपर चलता है, यहाँ पे हमने ग्राफ में दिखाया. तो हर स्टेजेस में, हर एक्सपेंशन में छोटा सा वर्क मिलता है, that is called DW. और by integrating this DW work, we can obtain the maximum work, and this is called the concept of maximum work. And that's why this is the way how we are going to find out, or how we are going to obtain the maximum work, which is obtained in a reversible process, which is slow. That is what we are. So this is the concept of maximum work done. तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क डन के लिए क्या क्या जरूरी कंडीशन से देखे आपने. सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन होना जरूरी है, फिर उसके बाद ड्राइविंग फोर्स इनफाइनाइटली ग्रेटर होना जरूरी है. देयर शुड बी इनफाइनाइट स्टेजेस, इट शुड बी अ स्लो प्रोसेस, एंड बाय इंटीग्रेटिंग वर्क ऑब्टेन ईच एंड एवरी स्टेप वी कैन ऑब्टेन द मैक्सिमम वर्क. सो दिस व्हाट वी हैव. सो कल का जो डेरिवेशन देखा था हमने, दैट इज द प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क था, और दैट इज द वर्क ऑब्टेन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस. और आज जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, this is the work obtained in reversible process. So that is the difference between both of the works. So hope I got the answer from your side. That means you are getting it well. So let's move to the next now. First we have seen the concept of maximum work done, and now we have to move how to derive the maximum work. So we'll move to that. Sorry, ये diagram नहीं कट करना है. Diagram ठीक है. So now see, ये डायग्राम में एक ही ड्रॉ करता हूँ. अगर आप हमारे बुक में देखेंगे आप लोग, तो बुक में आपको कई सारे डायग्राम मिलेंगे. मतलब एक सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर, तीसरा सिलेंडर, फोर्थ सिलेंडर, ऐसे कई सारे सिलेंडर लिखा है. तो है कॉन्सेप्ट वही कि दिस इज द सिलेंडर. कल हमने देखा था कि दिस इज द सिलेंडर व्हिच इज फिल्ड विद एन आइडियल गैस. इसके अंदर जो भरा हुआ है, दिस इज आइडियल गैस. So this cylinder is filled with an ideal gas, fitted with weightless and frictionless piston. Piston मतलब ढक्कन. तो ये weightless and frictionless piston से भरा हुआ है. कल जितने सारे हमने कंसिडरेशन देखे थे, ऑलमोस्ट वही कंसिडरेशन इसके अंदर है. तो मैं वंस एक बार वापस पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि दिस इज द सिलेंडर व्हिच इज फिल्ड विद एन आइडियल गैस, एंड इट इज fitted with weightless and frictionless piston मतलब ढक्कन. Then V1 is the initial volume of the gas. V1 is the initial volume of the gas. P is the pressure of the gas, and P external, PEXT, P external is the external pressure. शायद हैंड राइट समझने में आपको डिफिकल्टी आती होगी. आई एम सॉरी, बिकॉज एक तो मेरा हैंड राइट ही खराब है और हम वैसे भी ऑनलाइन, तो और डिफिकल्टी आती होगी. ट्राई टू एडजस्ट विद दैट. सो दिस इज द P external. So this is the pressure of the gas. So P is the pressure of the gas, and P external is the pressure of the atmosphere. What is acting on this gas? Suppose the external pressure is decreased by some amount, that is D. Then gas expands. क्योंकि ये प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस expands. बट यहाँ पे लिखना जरूरी है, gas expands isothermally and irreversibly. Sorry, isothermally and reversibly. ये लिखना जरूरी है, क्योंकि पहले वाला जो डेरिवेशन था वो isothermal irreversible था. इसके अंदर कंपल्सरी लिखना पड़ता है gas expands isothermally and reversibly. मतलब temperature remains constant and process is a reversible. तो गैस एक्सपांड होगा. रिवर्सिबल दैट डजंट मीन कि गैस एक्सपांड होगा और वापस कंप्रेस होगा. मैंने क्लियर किया था कॉन्सेप्ट. रिवर्सिबल का मतलब है प्रोसेस रिवर्स किया जा सकता है लेकिन नहीं कर रहा है, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स इनफिनिटेसिमली ग्रेटर. तो प्रोसेस में रिवर्स नहीं कर रहे, एक ही डायरेक्शन में चलेगा प्रोसेस. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रिवर्सिबल. सो गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2. वॉल्यूम V1 टू V2 इतना एक्सपांड हो रहा है. And here there are infinite stages between initial state and final state. There are infinite stages between initial and final state. Clear? इतना उसका अंडरस्टैंडिंग है. अभी सीधा डेरिवेशन की जरूरत है. We have, कल हमने ऑलरेडी एक डेरिवेशन देखा है, that is W is equal to minus P delta V. ये हमने कल ऑलरेडी देखा. W is equal to minus P delta V. W stands for work, P for pressure, delta V for change in volume. और ये भी जानते हैं कि this is the P external, that is delta V. तो मैंने P external भी लिखा, P external. ठीक है. अभी जैसा मैंने बताया आपको कि गैस का एक्सपांशन कब हो सकता है. गैस का एक्सपांशन तब होगा जब ये दोनों प्रेशर में डिफरेंस होगा. This is the pressure of gas and this is the pressure external. दोनों में अगर डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम होंगे, तो गैस is neither going to expand nor going to compress. If there is a difference between this pressure, then only gas is going to expand. तो अगर इस ऐसा केस है, तो there should be change in pressure. And change in pressure कैसा लिखा जाएगा? Change in pressure will be delta P. Change in pressure will be written by delta P. और delta P कब आएगा? अभी इसके अंदर गैस एक्सपांड हो रहा है, मतलब एब्सोल्युटली कौन सा प्रेशर ज्यादा है?
gas pressure is more than the atmospheric pressure. So that's why we can write P minus P external. So this is what we can write. Right? So delta P is a P minus P external. This P indicates the pressure of gas and this P indicates the external pressure. Absolutely external pressure कम है और गैस का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए तो एक्सपांशन हो रहा है. अगर केस उल्टा होता है, ये प्रेशर ज्यादा ये कम है, तो गैस क्या होगा? कॉम्प्रेस होगा. सिंपल. सो इन दैट सेंस ये हम लोगों को मिल जाता है. तो अगर मुझे P एक्सटर्नल निकालना है, P एक्सटर्नल, तो क्या करूंगा मैं? ये यहीं पे रखूंगा, ये इस तरफ ट्रांसफर कर देता हूँ. ये क्या होगा? देखिए डेल्टा P ये इस तरफ आएगा तो माइनस P इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल ऐसा है. ठीक है. अब ये माइनस साइन इधर हटा देता हूँ, ये माइनस इधर शिफ्ट करता हूँ, तो दिस विल बिकम प्लस एंड दिस विल बिकम माइनस. तो ये प्लस हो रहा है, तो आई विल राइट लाइक दिस P माइनस डेल्टा P इज इक्वल टू P एक्सटर्नल ऐसा इक्वेशन मिलेगा. गॉट इट? सो आई विल गेट दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन मिलेगा. और ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं. वी कैन पुट दिस इक्वेशन हियर, क्योंकि P एक्सटर्नल का वैल्यू ये है और ये यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं. तो फाइनली क्या मिलेगा? W इज इक्वल टू, इसके माइनस तो वैसे रहेगा, हियर माइनस P डेल्टा P इज इक्वल इनटू डेल्टा V ऐसा हम लोग को मिलेगा. जस्ट मैंने P एक्सटर्नल का प्रेशर का वैल्यू यहाँ पे रख दिया. अब ये अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए W इज इक्वल, ओके, इसके साथ सॉल्व करते हैं. बस ये माइनस वैसा वैसा रहने देते हैं. ये क्या होगा? P इंटू डेल्टा V, सो इट विल बी P इंटू डेल्टा V माइनस ये क्या होगा? डेल्टा P डेल्टा V. सो वी गेट दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन हम लोग मिल जाता है. चाहे तो हम लोग इसे ब्रैकेट में रख सकते हैं, ये बाहर आने के पहले. ठीक है, इतना हम लोग को मिल जाएगा. अब देखिए, दिस इज क्वांटिटी डेल्टा P डेल्टा V, ये हम लोग को मिल गई. व्हाट इज मीन बाय डेल्टा P? डेल्टा P का मतलब देयर इज अ स्मॉल चेंज इन प्रेशर. ये ऐसा भी डेल्टा दिखाया जा सकता है और कभी कभी आपको इसके बदले ऐसा D का डेल्टा भी दिखाया जाता है. D dP dV ऐसा भी दिखाया जाता है. डेल्टा ट्रायंगुलर डेल्टा या फिर डिफरेंशियल डेल्टा दिखाया जाता है. जनरली डिफरेंशियल डेल्टा दिखाना ज्यादा परफेक्ट राइट है. द रीजन बिहाइंड दैट, डिफरेंशियल डेल्टा का मीनिंग है देयर इज अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन प्रेशर. तो हम लोग वैसा भी करके ले सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है. तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा P के बदले DP कर सकते हैं. सो व्हाट इज दैट? बट दिस इज अगर हम करेंगे तो दिस इज अ डेल्टा P व्हिच इज वेरी स्मॉल चेंज इन प्रेशर. एंड दैट्स व्हाई अगर प्रेशर में स्मॉल चेंज है तो वॉल्यूम में भी कितना चेंज होगा? बहुत स्मॉल होगा. और वो जितना स्मॉल होगा उतना परफेक्शन में हमारा आंसर चला जाएगा. So we'll be having a perfect answer for that. So that's why this is delta P, which is very small change in pressure. So that's why the change in volume will be very very small. So this total factor will be small. So compared to this one, because this is the pressure quantity and this is change in volume, this factor और ये factor को हम consider करते हैं, तो this is very small compared to this one. So that's why उस कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं कि this delta P into delta V is very very less. That's why मतलब we can consider it almost equal to 0. तो ये factor 0 होता है, तो finally we get W is equal to minus P delta V. इतना ही हम लोगों को मिल जाता है जो हमारा इक्वेशन होता है. Clear with this? हाँ, अगर ये फैक्टर भी प्रेशर स्मॉल है, चेंज इन वॉल्यूम स्मॉल है, तो वर्क भी कितना होगा? स्मॉल ही होगा. दैट इज आई कैन राइट हियर DW. अब देखिए कंसीडरेशंस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है. If the change in volume is very small, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडर किया कि change in volume is very small. If change in volume is very small, then this product will be also very small, and that means DW. That is small work is obtained. So work कितना ऑब्टेन हो रहा है वो डिपेंड करेगा चेंज के ऊपर. जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक्सपेंशन अगर इधर के बदले यही तक हो जाता है तो और छोटा वर्क मिलेगा, इससे छोटा होगा तो और छोटा वर्क मिलेगा. तो एक्सपेंशन कितना हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना वर्क मिलेगा. तो फाइनली वी गेट दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन हम लोगों को मिल जाता है. तो ये इक्वेशन मैं ऊपर लिखता हूँ अभी. सो ये यहाँ से मैं कट कर देता हूँ. ये ध्यान रखिएगा कि व्हाट द इक्वेशन वी आर टेकिंग. ठीक है. सो अब देखिएगा, दिस इज इक्वेशन आई एम राइटिंग हियर. वी हैव द इक्वेशन DW is equal to minus P delta V. This is the equation number 1 what we get here, जो हमने अभी प्रूव किया. ओके. सो होता क्या है कि this is the work obtained, this is the small work obtained when there is a small expansion. There is a small expansion. And there are how many expansions? There are infinite expansions. There are infinite displacements from V1 to V2. So in between initial and final, there are infinite stages, infinite expansions, and that's why अगर हमें maximum work calculate करना है, तो this is the small work obtained in small expansion or small change. This work has to be integrated. This work has to be integrated between the limits when initial volume changes from V1 to V2. So integrating this equation, integrating
this equation between the volume changes from V1 to V2. Integrating this equation when volume changes from V1 to V2. Volume V1 to V2 में change हो रहा है और इसके बीच में हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो इस इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना है. So इस इक्वेशन that is integration of dW is equal to integration of minus P delta V. Integration of minus P delta V ये हम लोग का इक्वेशन मिल जाएगा. ठीक है ना. जैसे हमने कॉन्सेप्ट के अंदर देखा था कि in order to obtain the maximum work we have to integrate this work obtained in each and every step. So integrating dW मतलब integrating this to others. So we got this. अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग. अभी वर्क का इंटीग्रेशन करेंगे तो we'll get a maximum work. So we'll say W max. Integration of dW will give you maximum work. So we'll let W max मतलब maximum work is equal to minus साइन बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ P डेल्टा V होगा. So ये इक्वेशन हम लोग को मिल जाता है. इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं. ठीक है. Then we have ideal gas equation. हमारे पास ideal gas equation है. We have ideal gas equation. Ideal gas equation क्या होता है? PV is equal to nRT जो हमने 11th के अंदर डिस्कस किया था. मैंने कहा था आपको कि आइडियल गैस इक्वेशन बार बार आएगा और सिर्फ यहाँ पे नहीं, आगे आप में से कुछ लोग इंजीनियरिंग चले जाएंगे, खास करके मैकेनिकल और इंजन के साथ अगर डील करने वाले तो ये इक्वेशन तो पीछे नहीं छोड़ेगा. जिस तरीके से अमीबा पीछा नहीं छोड़ता है उस तरीके से आइडियल इक्वेशन पीछे नहीं छोड़ेगा. ये बहुत सारे डेरिवेशंस के अंदर और बहुत सारे कंसीडरेशंस के अंदर आ जाता है, थ्योरीज के अंदर आ जाता है. दैट्स व्हाई इट हैज टू बी कंसीडर्ड वेल. तो PV is equal to nRT. P stands for pressure, P for volume, N for number of moles, R for gas constant and T for temperature. ये हम इसी तरह जानते हैं. Pressure, volume, number of gas constant and temperature. These are the things what we get here. ठीक है. अभी देखिए ना, अगर मुझे P फाइंड आउट करना है तो P is equal to V इस तरह भेज देता हूँ मैं, तो nRT upon V ये मुझे मिल जाएगा. So this is the equation how I get. This is the equation number 3. तो P is equal to nRT upon V. अभी हम लोग अगर सेकंड के अंदर आते हैं तो यहाँ पर P है, that is the pressure, और यहाँ पर भी प्रेशर. सो इस प्रेशर का जो वैल्यू है यहाँ से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को 2 के अंदर पुट करते हैं. सो फाइनली क्या मिलेगा? W max is equal to पुटिंग दिस इन दिस वन. अभी मैं यहाँ पे स्पेस के कारण लिख नहीं पा रहा हूँ कि पुटिंग इक्वेशन 3 इन 2 वगैरह. ठीक है. सो पुटिंग दिस इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 इसके अंदर रखेंगे हम लोग माइनस इंटीग्रेशन P का वैल्यू क्या है? nRT अपॉन V इनटू डेल्टा V. ये हम लोगों को मिल जाता है. सो दिस व्हाट वी गेट हियर. ये हम लोगों को इक्वेशंस के अंदर मिल जाता है. नाउ हम अच्छी तरह जानते हैं इंटीग्रेशन कौन सा टर्म का होता है. देयर आर टू टर्म्स, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट टर्म होता है. तो क्या कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन होता है? नहीं होता है. वेरी गुड. तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन होता है. जितने सारे कांस्टेंट टर्म है वो सारे इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएंगे. ठीक है. तो आप देखिएगा यहाँ पे कौन से टर्म. हाँ, वेरी गुड. n इज नंबर ऑफ मोल्स. हम इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदल रहे हैं. एक बार हमने इसके अंदर गैस भर दिया तो वी आर नॉट चेंजिंग इट्स नंबर ऑफ मोल्स. तो इन दैट सेंस नंबर ऑफ मोल्स n रिमेंस कांस्टेंट. r तो पहले से कांस्टेंट है, इट इज अ गैस कांस्टेंट, तो वो तो कांस्टेंट ही है. टेंपरेचर कांस्टेंट है. क्यों? क्योंकि हमने ऊपर कंसीडर किया था इट इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल. तो आइसोथर्मल मतलब टेंपरेचर इज आल्सो कांस्टेंट. तो ये तीनों टर्म उसके अंदर कांस्टेंट रहेंगे, वो इंटीग्रेशन के बाहर आएंगे. तो वी गेट फाइनली W max here is equal to minus nRT integration of delta V upon V. ये हम लोग को मिल जाएगा. So this is what the equation we get here. Clear with this? Now we'll have to write here. Space थोड़ा सा कम हो रहा है और मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जंप भी नहीं कर रहा हूँ, जंप भी नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है. आप देखिए सिर्फ साइन सुनिएगा. W max is equal to minus nRT delta V upon V इतना आपको उसके अंदर मिल रहा है. तो अभी क्या हो रहा है कि इस इंटीग्रेशन साइन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं. एक तो कांस्टेंट के फॉर्म में सॉल्व किया जा सकता है या फिर एलएन के फॉर्म में सॉल्व किया जाता है, लॉग के फॉर्मेट में. तो हम एलएन के फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे बिकॉज़ इजी मेथड है. कांस्टेंट में भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट द मैटर, बट एलएन का फॉर्मेट इजी है. सो वी गेट हियर W max is equal to okay, W max is equal to minus nRT ln सीधा log of upper limit. सॉरी, इसके अंदर लिमिट नहीं लिखे मैंने, एक गलती यहाँ पे हो रही है हमारी कि दिस इज V1 to V2. मतलब हमने जो लिखा था कि इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन बिटवीन द लिमिट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 to V2. तो इधर हमेशा लिखना है V1 to V2. ये हर जगह लिखना पड़ेगा हम लोगों को.
आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज मैंने नहीं लिखा था, बट वी नीड टू राइट इट। तो होता क्या है, एलएन के फॉर्मेट में जब इस इक्वेशन को लेते हैं तो लॉग ऑफ अपर लिमिट माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट, तो इसका अपर लिमिट है v2 और लोअर लिमिट है v1, तो इधर आएगा आपका v2 अपॉन v1, इस तरीके का लॉग ऑफ अपर लिमिट माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट, इस तरीके से वो आ जाएगा। सो अभी ये जो ln है, ln का मतलब क्या होता है सिना, ln मतलब लॉग बेस ई। ln आज की तारीख में कहा जाता है, जैसे हम लोग आज की तारीख में कई बार मैंने कहा कि आजकल कोई ब्रदर नहीं कहता, सिंपली ब्रो कहते हैं, तो वैसे साइंस में भी कई सारे शॉर्ट फॉर्म यूज किए जाते हैं, उसमें से ये है। आजकल हम लोग लॉग बेस ई को ln कहते हैं, मतलब लॉग बेस इज ऑलमोस्ट आउटडेटेड एंड ln इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ दैट। तो ln लॉग बेस ई, उसका वैल्यू कितना होता है, तो 2.303 लॉग बेस 10। ये हमने 11 के अंदर भी किया था, आपको अगर याद आ रहा है तो 11 के अंदर भी किया था। सो ln इज इक्वल टू log बेस e व्हिच इज इक्वल टू 2.03 log बेस 10, इतना वैल्यू होता है, मतलब ln का वैल्यू ये है और इसका वैल्यू ये है। तो इंस्टेड ऑफ ln वी कैन पुट दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे रख सकते हैं। सो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, देखिए फिर w max इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log base 10 v2 upon v1. This is the equation what we get here, and this is the final proof of this equation. ये इस इक्वेशन का फाइनल प्रूफ होता है, w max is equal to minus 2.303 nRT log base 10 v2 upon v1, ये मिलता है। बस यहाँ पे log base के साथ जो 2.303 था वो मैंने थोड़ा आगे लिया, that doesn't matter ना, कहीं भी लिखो because it's a multiplied, तो कहीं भी लिखो doesn't matter. So this is the final equation what we get here, w max. तो हमारा पॉइंट ही था कि what is the concept of maximum work done and how we are going to derive the maximum work done. So by integrating all the work obtained in each and every step, we can find out the maximum work done, and this is the formula to find out the maximum work. तो work के दो derivations हो गए। पहला derivation था W is equal to minus P delta V, and that is work obtained in isothermal irreversible expansion of the gas. And this is the also formula of work, but this is when work obtained in isothermal reversible expansion of the gas. So this is the difference, reversible and पहले वाला irreversible, एक शब्द का फर्क है, उसके कारण टोटल फार्मूला और कॉन्सेप्ट बदल जाता है। So this is what W max. W max stands for maximum work done, N stands for number of moles, R stands for gas constant, T stands for temperature, V1 stands for initial volume, and V2 stands for final volume. इतना हम लोगों को मिल जाता है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम लोग अलग अलग तरीके से, बिकॉज हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर एक लॉ देखा था, दैट इज बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ का एक फॉर्मूला हमने देखा था, दैट इज P1 V1 is equal to P2 V2। शायद याद आ रहा होगा आपको, हमने ये फॉर्मूला देखा था P1 V1 is equal to P2 V2। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि सपोज यहाँ पे हम लोग P1 अपॉन P2 करते हैं, V2 इस तरफ लेते हैं, तो V2 अपॉन V1 आ जाएगा, तो विल गेट V2 अपॉन V1, इतना आपको मिल जाता है। तो इसका मतलब देखिए V2 अपॉन V1 का मतलब है P1 अपॉन P2, V2 upon V1 is P1 upon P2. We can substitute this value. Instead of P2 upon V1, we can put P1 upon P2. This formula becomes modifies. W max is equal to minus 2.303 nRT log base 10 P1 upon P2. This is the second formula what we get here. यहाँ पे दूसरा formula मिलता है। Even इसका exponential formula भी होता है। ध्यान रखिए, we can find out the exponential formula too again. ओके, बट उसके अभी फिलहाल में जरूरत नहीं हम लोगों को, बस इतना सफिशिएंट है हमारे लिए। तो W max is equal to 2.03 nRT log base 10 P1 upon P2, isn't it? So please whoever is whispering a bit mute your, ताकि बाकी लोग भी ना डिस्टर्ब हो जाए उसके कारण। So please, I will. So this is what we have. So this is the derivation and this is the concept of maximum work done what we have here. So अभी इसके अंदर देखिए तीन जगह आपको याद रखना है कि कहाँ चेंजेस होते हैं। ये तो सिंपल है, मतलब ये तो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी कल ही डिराइव किया था, थोड़ा सा मॉडिफाई करके वापस w equal minus p delta दिया है। फिर ये जैसा फॉर्मूला हमारे सामने आता है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन बिटवीन द लिमिट्स व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम v1 टू v2। इसमें उसे इंटीग्रेट करना, ये पहला चेंज। दूसरा चेंज है कि वी हैव टू ब्रिंग आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज pv is equal to nRT इस इक्वेशन के अंदर ला। तो p का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, वो उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। फिर उसके बाद सॉल्व करते चलेंगे, और फिर यहाँ पे जो आते हैं ln के फॉर्मेट में सॉल्व करना है। सो दिस इक्वेशन हैज टू बी सॉल्व्ड इनटू द फॉर्मेट ऑफ ln, एंड दैट इज ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस भी लिख सकते हैं या फिर v2 अपॉन v1, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ln v2 माइनस ln v1। सो अब log ऑफ मतलब ln ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैंने वो स्टेज ओमिट कर दिया बिकॉज़ स्पेस कम था इसलिए।
तो V2 अपॉन V1 हम लोग इसके अंदर मिल जाता है। बस इतना चेंज करना है और बाकी फिर इधर बॉयल्स लॉ आ जाता है और बॉयल्स लॉ के हिसाब से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो उसके हिसाब से P1 अपॉन P2 सब्स्टिट्यूट होता है इंस्टेड ऑफ V2 अपॉन V1, and this is the maximum work of that. So hope so you all got it, because this is the second derivation what we have seen here in this chapter. W max, तो पहला था W joule minus P delta V, दूसरा है W max. Clear? So that's all for this one. Now we have to proceed for the next concept. Okay, move on. Okay, अब देखिए, now next concept what we have discussed is nothing but the concept of heat and concept of internal energy. दो concept, only heat के बारे में हमने बात की, but we have to discuss two things. That is, number one is heat and number two is nothing but the internal energy. Internal energy, that is denoted by U, and heat is denoted by Q. Okay, ये U है capital U. So इससे वो दिखाया जाता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है, दैट इज व्हाट वी कैन से हियर, हीट एंड इंटरनल एनर्जी। हीट के बारे में तो देखा हमने, ऑलरेडी मैंने बताया कि हीट इज डिनोटेड बाय Q, स्मॉल q या कैपिटल Q। अभी आज की तारीख में कैपिटल Q से दिखाया जा रहा है। हीट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज आल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी एक एनर्जी का फॉर्म ही है हीट, एंड दैट इज डिनोटेड बाय Q. सो व्हेनेवर energy is released, या फिर सपोज कि there are two things, that one is the system and another is the surrounding. या हमारा एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि विंटर सीजन हमारा बॉडी मानो एक सिस्टम और बाकी रेस्ट तो सराउंडिंग। विंटर में क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर फॉल डाउन होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, अभी पुणे सिटी जैसे सिटी में टेम्परेचर 12 डिग्री तक आता है, उससे भी नीचे भी आ जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा भी मानते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर तो 100% 36 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस होता है, हम 36 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, इतना हमारे बॉडी का टेम्परेचर। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है और जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं उस सराउंडिंग का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। तो बॉडी टेम्परेचर इज एट हायर लेवल एंड सराउंडिंग टेम्परेचर इज एट लोअर लेवल। हीट हैज टू फ्लो, हीट हैज टू फ्लो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर, हीट हैज टू फ्लो। हमारे बॉडी से हीट सराउंडिंग में चली जाती है और हमारी बॉडी से हीट जब सराउंडिंग में चली जाती है तो वी फील बिट कोल्ड, हमें थोड़ा सा कोल्ड जैसा लगता है, एंड दैट्स व्हाई फिर हम लोग या तो कुछ अच्छे स्वेटर्स वगैरह पहन लेते हैं, या फिर हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्लेम के सामने जाके बैठ जाते हैं ना, या फिर हम लोग और कोई तो ऑप्शन निकालते हैं, धूप में चले जाते हैं लाइक दैट, जिसके कारण हमारा टेम्परेचर बढ़ता। समर सीजन में उल्टा होता है। समर में देखिए ये पुणे सिटी में या फिर कहीं टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस होता है सराउंडिंग, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 36 डिग्री सेल्सियस। तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, हमारी बॉडी का कम है, तो हीट फ्लोज फ्रॉम आउटसाइड, मतलब सराउंडिंग टू सिस्टम, हमारे बॉडी के अंदर आता है, आना ही है। तो फिर हम लोग रेस्टलेस हो जाएंगे, दैट्स व्हाई फिर हम लोग छाव में जाना पसंद करते हैं कहीं ना कहीं, या फिर बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, है ना, लाइक दैट, टू ट्राई टू मेंटेन आवर बॉडी टू द कूल टेम्परेचर, दैट इज 36 डिग्री। अपने बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। हीट का कांसेप्ट यही है कि if two things are in contact, that is system and surrounding, and there is a difference of the temperature, then heat has to flow, and heat is a form of energy. Heat as a form of energy, that is denoted by Q. तो Q के दो वैल्यू होते हैं, that is you can say plus Q and there is a minus Q. There are two values, मतलब sign convention हो सकते हैं कि whenever heat flows inside the system, that is plus, or whenever heat flows outside the system, system से surrounding में चला जाता है, so that has to be minus. Surrounding से system में आता है तो plus, तो heat can be denoted by plus sign or can be denoted by minus sign. तो plus sign indicates that heat is added into the system from the surrounding, the energy is added into the surrounding, and if it is negative, that is heat is lost by the system to the surrounding. क्योंकि दो ही चीजें, एक system है दूसरा surrounding, so that's why ये sign convention heat क्या है। तो heat is a form of energy and it is denoted by Q, and दो sign conventions are. Next, internal energy, ये concept बहुत ही बढ़िया है। What is the concept of internal energy denoted by U? So internal energy, अब देखिए हमें जो यहाँ पे सब लोग हम लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, हर एक का अपना एक एनर्जी है, हर एक का अपना एक ऊर्जा है ना, हर एक का अपना एक ऊर्जा है, अपनी एक एनर्जी है, अपनी कैपेसिटी, एनर्जी के फॉर्मेट में बोल सकते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स यही मानता है कि दुनिया में सारी चीजों का, दुनिया में जितनी सारी चीजें, हर पार्टिकल का अपना एक एनर्जी है, हर पार्टिकल का, एटम का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, क्रिस्टल का, हर ह्यूमन बीइंग का, हर चीज का। मानो मेरे हाथ में एक पेन है, तो पेन का भी अपना एक खुद का एनर्जी है, मैं खुद का एक एनर्जी है उसका, अपना पेन का। अभी मैं अलग करता हूँ तो ये ढक्कन का अपना अपना है और इसका अपना अपना है। सो इन दैट सेंस यू कैन से दुनिया में हर चीज का अपना एक एनर्जी है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड
has its some associated with some certain amount of energy, and that is pure of its own. खुद का अपना है, and that is called as internal energy. उसे हम लोग internal energy जैसा कहते हैं. मतलब the sum total of different types of energies associated with the substance is called as internal energy. या फिर the absolute amount of energy associated with the substance is called as internal energy. Absolute amount of energy. मतलब इस पेन का अपना खुद का एनर्जी इस कॉल्ड एज एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज इंटरनल एनर्जी. हाँ, अभी इस पेन के ऊपर मैं जो बात कर रहा हूँ, ये साउंड एनर्जी उसके ऊपर स्ट्राइक हो रहा है. यहाँ पे जो लाइट लगा हुआ है, लाइट एनर्जी उसके ऊपर स्ट्राइक हो रहा है, तो वो एनर्जी उसके अंदर ऐड हो जाएगा. वो नहीं, जो सराउंडिंग से किसी भी फॉर्मेट में एनर्जी उसके अंदर आ रहा है, वो नहीं काउंट करना है. काउंट करना है बस उसका अपना. So in that sense, you can say absolute amount of energy associated with the substance is called as internal energy. या फिर sum total of different types of energy present in the substance is also called as internal energy. Sum total of different types of energies present in the substance. कौन से energies होते हैं हम जानते हैं. There is a potential energy, there is a kinetic energy. ये दो होते हैं. This is nothing but the internal. So किसी भी substance का internal energy is nothing but the sum total of potential energy and kinetic energy. अभी पोटेंशियल के अंदर क्या आते हैं, दोनों आते हैं, दो टाइप की एनर्जी आते हैं. एक है जो किसी भी सब्सटेंस को अगर हम बात करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं, तो उसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, बॉन्ड बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो उसके साथ तो बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इज यू कैन से ये एक एनर्जी होता है, और बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स उसका एक एनर्जी होता है. इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, ये दो टाइप की एनर्जी होती है. इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, दैट इज द पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. And kinetic energy की बात करते हैं तो kinetic energy is the energy associated with the substance or particle due to any type of motion. That is called kinetic. मतलब इसे ये भी कहा जाता है कि this is kinetic energy also called as thermal energy, and this potential energy is a potential energy. The energy associated with the substance due to virtue of its position. Due to virtue of its position is called as potential energy. उसके बारे में आप बचपन से एक एग्जांपल सुनते आए हैं कि डैम के अंदर जो वाटर होता है उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होता है 100%. ये जब वाटर फ्लो डाउन होता है तो वो अपनी एनर्जी उस टरबाइन को देता है. टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी तैयार करता है, ये हम जानते हैं. तो इसे मतलब किसी भी सब्सटेंस के पोजीशन के कारण जो एनर्जी उसके साथ होता है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द सब्सटेंस ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद द सब्सटेंस ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द सब्सटेंस ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. किसी भी टाइप का मोशन, चाहे वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, किसी भी टाइप का मोशन जो होता है उसके साथ जो रिलेटेड एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी के तीन टाइप तो हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मली कि दैट इज वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी. ये काइनेटिक टाइप, और इसके दो होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर. ये हमें आज जानते हैं, ये फॉर्म हम जानते हैं, हमें पता है, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर नोन सोर्सेस. अभी भी साइंस को बहुत सारी चीजें ढूंढना है, बहुत सारे ऐसे एनर्जीज है, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल जो हमें नहीं ढूंढ रहे हैं, हो सकता है हमें ढूंढने. तो आज जितना हम जानते हैं उतना अभी भी हम लोग ऐसे कि नहीं जानते, और इसीलिए इसके कारण क्या होता है कि दो आज हम जो जानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी, मतलब जैसे कि यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर प्लस यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर प्लस यहाँ पे वाइब्रेशनल प्लस यहाँ पे रोटेशनल प्लस यहाँ पे ट्रांसलेशनल. यू सब जगह है, ये सब यू जगह है. यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर छोटा लिखा है, आपको दिखाई नहीं देगा, जस्ट मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूँ. दिस इज द इंटरनल एनर्जी, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सब्सटेंस ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, जो हम जानते हैं. बट ऐसे भी बहुत सारे फॉर्म है आज हम नहीं जानते, एंड दैट्स व्हाई किसी भी सब्सटेंस का एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी मेजर करना हमारे कंट्रोल के बाहर. किसी भी सब्सटेंस का एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं कर सकते. बट दैट मींस इट हैज द इंटरनल एनर्जी. दैट डजंट मीन कि इट डोंट हैव, इट हैज द एनर्जी. हर सब्सटेंस के अंदर, हर पार्टिकल के अंदर अपना एनर्जी है. आज हम कुछ मेजर कर पाते, कुछ नहीं मेजर कर पाते. सो ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी सब्सटेंस का इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं कर सकते, किसी भी सब्सटेंस का इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज जितने हमें पता है उतने मेजर कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे फॉर्म है जो आज भी हमें पता नहीं, and that's why it's difficult to measure absolute amount of energy of each and every substance. But there is a concept called as absolute energy, that is called as internal energy. तो किसी भी substance का internal energy measure नहीं कर सकते हम लोग. This is the absolute amount of energy associated with the substance. या फिर different types of energies present in the substance.
नोन अननोन दोनों भी है, और इसका जो सम टोटल होता है दिस इज नथिंग बट द इंटरनल एनर्जी। ये हम इंटरनल एनर्जी जानते हैं। वी कांट मेजर इंटरनल एनर्जी, हम इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं कर सकते, बट वी कैन मेजर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1, यह मेजर। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि हम लोग यू नहीं मेजर कर सकते, बट हम लोग डेल्टा यू मेजर कर सकते हैं। यही खासियत है, यही तो स्पेशलिटी है इसकी। That's why this concept has to be understood, क्योंकि आगे जाके वापस कई सारे फॉर्मेट पे इंटरनल एनर्जी वापस बार बार हमें समझाना है। So we can't measure internal energy, but we can measure change in internal energy. हम U1 मेजर नहीं कर सकते, हम U2 मेजर नहीं कर सकते, मतलब दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट, दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट, है ना। हम दोनों मेजर नहीं कर सकते, फिर भी हम लोग डेल्टा यू मेजर कर सकते हैं। ये उसकी एक खासियत है। अब आपके दिमाग में सिंपली सवाल आया होगा, इफ वी डोंट नो U1 and U2, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू देन, बराबर ना। लेट्स मूव। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अभी मानो आपका एक दोस्त है ना, कॉलेज शुरू होने के बाद, और आपने आपके दोस्त को माना कि चल कुछ पार्टी वार्टी दे दे, है ना। बहुत लॉकडाउन के बाद हम लोग आए और किसी दोस्त को अपने एक पार्टी मांगा। अभी अभी वो बेचारा बोला ठीक है चलो, अभी सारे दोस्तों ने मांगा है तो ना नहीं बोल सकता, चलो हम लोग पार्टी के लिए चले जाते हैं। आप लोग 5-6 लोग आप निकल जाते हो पार्टी के लिए। अब पार्टी मतलब क्या, अभी कॉलेज लाइफ में जो पार्टी होता है, बड़ा पाव चाय, है ना, इस टाइप का। तो इस टाइप का पार्टी कुछ हुआ, और उसका जो भी बिल है, मानो एक 400 रुपये बिल हो गया। अभी वो 400 रुपये बिल उस बंदे ने हमारे सामने वहां पे दे दिया, काउंटर पे दे दिया। अभी हमने जब उस बंदे को पार्टी मांगी थी तो उसके पैकेट में कितने पैसे हमने नहीं सोचा था, बिकॉज जस्ट फ्रेंडली हमने बोला था यार फ्रेंड है तो दे दे पार्टी। और उसने भी थोड़ा बहुत सोचा और फिर बोला ठीक है मैं दे देता हूँ पार्टी, और उसने 400 रुपये बिल दे दिया होटल में। अभी उसके पैकेट में शुरुआत में कितने पैसे थे हम नहीं जानते, दैट इज U1। वहां पे बिल 400 रुपये देने के बाद अभी उसके पैकेट में कितने बचे ये हम नहीं जानते, दैट इज U2। बट दोनों का डिफरेंस, उसके पैकेट में शुरुआत में कितने थे पता नहीं, फाइनल में कितने हैं पता नहीं, बट हमारे सामने उसने होटल वालों को 400 रुपये दिए, दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस। ये उसके अंदर का। सो दिस इज द एग्जांपल कि though we are not able to measure U1 and U2, we can measure the delta change in इंटरनल हम लोग मेजर कर सकते हैं। टेक सम अनदर एग्जांपल, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पेट्रोल का बात करते हैं हम लोग, हमारे गाड़ी के अंदर पेट्रोल पुट करते हैं हम लोग, है ना। अभी अभी डिफरेंट गाड़ी है, अलग अलग गाड़ी है। एक गाड़ी ऐसा हो सकता है कि 1 लीटर पेट्रोल पे 60 किलोमीटर चलती है, दूसरी गाड़ी ऐसी होती है कि 1 लीटर पेट्रोल पे 80 किलोमीटर चलती है, तीसरी गाड़ी ऐसी होती है कि 1 लीटर पे सिर्फ 25 किलोमीटर चलती है, और कुछ गाड़ियां ऐसी है मार्केट में जो 1 लीटर पे सिर्फ 5 किलोमीटर चलेगी। तो में से कुछ लोग जानते हो ये जो बाइक या 4 व्हीलर के लवर्स है, या जो पैशनेट है वो जानते हो, ऐसी भी कुछ गाड़ी है। आप देखिए ना फर्क क्या है, पेट्रोल तो 1 ही लीटर है, बट फिर भी अलग अलग गाड़ी अलग अलग एवरेज देता है। रीजन बिहाइंड दैट उसके अंदर का इंजन जितना ज्यादा हॉर्स पावर का होगा, HP का होगा, CC का होगा, उतना कम एवरेज हो देगा, उतना कम एवरेज देगा। इन दैट सेंस यू कैन से हियर, बट फिर भी अभी 1 लीटर पेट्रोल के अंदर कितना एनर्जी हम नहीं जानते। माना कि फ्यूचर में ऐसी भी गाड़ी आ सकती है कि 1 लीटर पेट्रोल के अंदर वो 200 किलोमीटर चले जाए, है ना, तो और मजा आएगा, क्योंकि पेट्रोल 1 ही लीटर डालना है लेकिन गाड़ी 200 किलोमीटर चल सकती है। रीजन बिहाइंड दैट, पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल के अंदर कितना एनर्जी है, दैट इज इट्स इंटरनल एनर्जी, हम नहीं जानते। जितना नोन है उतना वी आर एबल टू फाइंड इट आउट, बट जो नोन नहीं उसका क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड इट आउट। इन दैट सेंस आने वाले दिनों में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हम बनाएंगे कि और अननोन सोर्सेज जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे और मैक्सिमम एनर्जी हम लोग कन्वर्ट करेंगे, पेट्रोल के अंदर का एनर्जी मैक्सिमम कन्वर्ट करेंगे वर्क के अंदर। सो हो सकता है कि फ्यूचर में गाड़ियां 1 लीटर पेट्रोल पे 200 किलोमीटर जाएगी, श्योर जाएगी, ध्यान रखिएगा। द रीजन बिहाइंड दैट 1 liter of petrol has a lot of energy stored in it. We don't know how much it is. We have to extract maximum work out of that 1 liter petrol. And that's why thermodynamics is working for that one. यही thermodynamics का खास बात है कि हमें फाइंड आउट करना है। So this is what we have. तो आज 1 लीटर पेट्रोल के अंदर कुछ गाड़ी 60 किलोमीटर चलती है, वो उतना एनर्जी बाहर निकालती है, कुछ गाड़ी 80 किलोमीटर चलती है, वो उतना एनर्जी बाहर निकालती है, कुछ गाड़ी हो सकता है कि 30 किलोमीटर चले, वो उतना ही एनर्जी बाहर निकाल पाती है। So that is what we have seen. Though we don't know the U1 and U2, but difference we know. उतना एनर्जी तो बाहर आ चुका है, that is वो हमारा है ना। So that is what we are. That is what we are saying in internal. So we can't measure U1 and U2, but we can measure change in internal. So this is a concept of the change in internal energy. Right with us? So that is what we have. So ये हमारे सामने concept है, ये हम देखते हैं। So just let me check it. How much time is remaining over there?
Okay, almost time is it. Almost time is about to ending. जाते जाते देखते हैं हम लोग क्या डिस्कस किया और कल के लेक्चर में हमें क्या डिस्कस करना है. कल के लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जो आज के लेक्चर में एक्सपेक्टेड था लेकिन थोड़ा सा शायद डेरिवेशन के कारण स्लो डाउन हुआ. कल के लेक्चर में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. जैसे मैंने बताया कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर 3 लॉ है, उसमें से 2 आप अच्छी तरह जानते हो बट आपको पता नहीं कि दीज आर द लॉज ऑफ दिस, और एक तो आप अच्छी तरह जानते हो. तो जाते जाते वो लॉ बता देता हूं मैं आपको, कल हम वहां पर डिस्कस करेंगे. आप ये अच्छी तरह जानते हो, लॉ ऑफ एनर्जी. Will anyone tell me what is law of conservation of energy? Anyone, please? What is law of conservation of energy? कोई बात. Energy can neither be created nor be destroyed. Only one form of energy can be converted to another form. This is the law of conservation of energy. And this is first law of thermodynamics. तो कल के लेक्चर में we are going to discuss that first law of thermodynamics. But आज जितने हमने डेरिवेशन देखा है that is concept of maximum work done, then work obtained in reversible isothermal process, and we have seen concept of heat, and also we have seen concept of internal energy. So I expect that tomorrow we will be prepared with this topics what we have seen, and we'll move to the next topic called as first law of thermodynamics. Clear? So thank you very much from my side. See you tomorrow.